Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to the Slate class of Physics A levels. In this series of videos, we are starting with paper 5 portion of A levels, right? So paper 5 is very important paper because इस पेपर में आपको पेपर को बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है एंड यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, अदरवाइज कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है. Right? So, in the previous video, I have uploaded question number 1 of this paper, which is May-June 22 paper 5-2, and here we will do the question number 2. ठीक है? At this point of time, बच्चों मैं आपको इस बुक से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जो कि मेरी बुक है. I have written this book for A levels A2 portion, right? So, this book is present at Student Resource and all leading booklets of Pakistan. ठीक है? Now, these are the color notes. ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रैंडमली पेज देख सकते हैं. ये कलर्ड नोट्स हैं. इट कवर्स कंप्लीट ए लेवल्स इन जस्ट 200 पेजेस. ठीक है, और इसके एंड पे मैंने एक पेपर 5 को भी अटैच किया है. ये पेपर 5 वो वाला है जो मैं इस वक्त क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ. सो दिस इज अ रेफरेंस पेपर, यू कैन सी फ्रॉम दिस बुक. यू कैन ऑर्डर दिस बुक फ्रॉम योर होम्स. आप स्टूडेंट रिसोर्स पे कॉल करके इस बुक को डिलीवर भी करवा सकते हैं, राइट? सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2. This question says that brightness of some stars vary regularly. ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनकी कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कभी इंटेंसिटी कम है. ठीक है, these stars are called variable stars, right? Figure 2.1 shows the variation of luminosity with time for the variable star. ठीक है, if we see along the y-axis the quantity is luminosity and along x-axis the quantity is time, and luminosity is constantly varying with time. ठीक है, कभी luminosity maximum, कभी minimum, कभी maximum, कभी minimum, and the time between the two maximum intensities is referred as time period, and generally we use symbol capital T. Examiner ने भी इस time के लिए symbol capital T ही use किया हुआ है, right? A student determines the time period and the mean luminosity L of the star. A student repeats the process for different variable stars. It is suggested that L and T are related to equation L equals S K T raised to power A, where S is the luminosity of sun and A and K are constants. ठीक है? A graph is plotted of LG Y, LGL on y-axis and LGT along the x-axis. ठीक है, so basically you have to take log on both sides to linearize equation. Now what is linearization? Linearization is a process to convert any equation in an equation of straight line. ठीक है, आपके पास जो given equation है ये linear equation नहीं है because यहाँ पर maximum power जो है वो 1 से ज्यादा है. We yet don't know the value of A, तो इसका ग्राफ इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा. Let's take log on the both sides because जो ग्राफ प्लॉट कर रहा है उसमें LGL है, so it will be equal to LGL is equal to LG S K T raised to power A. ठीक है, जब हमने log को इंडिपेंडेंटली वेरिएबल्स के साथ लिखना है तो कौन सा साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा? प्लस साइन. फर्दर स्टेप में मैं लिखूंगा LGL is equal to LGSK plus LGT raised to power A. ठीक है, एंड अदर रूल ऑफ लॉग इज कि जब पावर को आप नीचे लिख सकते हैं, आई मीन यू कैन राइट इट एज LGL is equal to ALGT plus LGSK. Right? Now you have converted your given equation in equation of straight line, which is y equals mx plus c. अच्छा, अब उसकी गिवन स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं. A graph is plotted of LGL along y axis. So LGL जो है ये y के साथ aligned है and LGT on x axis. LGT को हम x axis पर प्लॉट करेंगे. ऐसा करने से ये होगा कि आपके ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो a के इक्वल है और y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू LGSK, राइट? सो यही काम मैंने यहां पर किया, इक्वेशन को लीनियराइज किया. ही इज आस्किंग यू टू डिटरमिन द एक्सप्रेशंस फॉर ग्रेडियंट
and y-intercept. So by comparison method, your gradient is equal to a and y-intercept is equal to LG/SK. So gradient की जगह आपने लिखा जनाब a और y-intercept की जगह लिखा LG/SK. Right? Now moving on to this table. ठीक है, you have to understand this table very carefully. आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने इस टेबल को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये सारा टेबल समझाऊंगा. मार्क स्कीम में आपको इन अनसर्टेनिटीज का फॉर्मूला नहीं मिलता, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो द वैल्यू ऑफ टी एंड एल आर गिवन इन द टेबल. टी की वैल्यूज गिवन है बच्चों डेज में, राइट, और ल्यूमिनोसिटी की वैल्यू गिवन है 10 raised to power 30 watts में. Now different stars have different luminosity, so this data belong to different stars and their different luminosities. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टार का टाइम पीरियड ऑफ इंटेंसिटी 22 डेज है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी ल्यूमिनोसिटी की वैल्यू आ रही है 2.9 into 10 raised to power 30 watts. ठीक है, बट दिस ल्यूमिनोसिटी हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 0.2 into 10 raised to power 30, तो इसकी लॉग्ड वैल्यू के अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी. लेट्स रीड द क्वेश्चन और इस टेबल पे दोबारा वापस आते हैं. Question says that calculate and record the values of LGT in days and LGL slash 10 raised to power 30 watts in the table. Include the absolute uncertainties for LGL, right? So, आपने इन सारी वैल्यूज का लॉग करके इस टेबल में इंक्लूड करना है. So, आपने टाइम को डेज में ही रखना है बिकॉज टाइम इन डेज वाली वैल्यू का लॉग लिया हुआ है. So the first value is 22. Log of 22 will be LG22 is 1.34. 1.34, right? So the value of days is given in two significant figures. I have given the value of LGT in one better significant figure which is 3SF, और मैंने इस 3SF को थ्रू आउट द टेबल जो है मेंटेन किया है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ LGL. ठीक है, सो LGL विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2.9 एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, पहले अनराउंडेड वैल्यू लिखूंगा, राइट. दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.462, right? Now we have to write the value of its uncertainties के formula को understand करें. Uncertainty in the value of log of L is equal to log of L की maximum value minus log of luminosity's minimum value divided by 2. ठीक है? Okay, maximum value will be 2.9 plus 0.2 and this value is 3.1 minus minimum value will be 2.9 minus 0.2 which is 2.7 and this value divided by 2 is coming out to be 0.2999. 0.0299. Now this is the value of uncertainty. Now why this formula? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें कि ये फॉर्मूला अप्लाई ही क्यों करना. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से लेस का पैकेट बाय करते हैं. लेट सपोज इट हैज 50 ग्राम्स ऑफ लेस इनसाइड इट. सो 50 प्लस माइनस 2 ग्राम्स इसके ऊपर मेंशन्ड है. इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सट्रीम्स बन रही हैं 52 और 48. ठीक है, 50 plus 2 is 52 and 50 minus 2 is 48. So uncertainty in the value of this mass is equal to maximum value which is 52 minus minimum value which is 48 divided by 2. यहाँ से आपका आंसर आ रहा है plus minus 2 which is the value of uncertainty. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस चीज को प्रूव कर दिया है कि uncertainty maximum value minus minimum value divided by 2 के इक्वल होती है, right? Now we know that absolute uncertainty is always given in how many significant figures? Always one significant figure. So 0.299 will be rounded off to 0.03 and this value is in one significant figure. So in the table I will write 0.03.
याद रखना है कि अगर वन सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा कुछ आंसर लिखेंगे तो आपका मार्क डिडक्ट होगा। समटाइम्स मार्क्स स्कीम में वो अनसर्टेनिटी को टेबल की हद तक टू सिग्निफिकेंट फिगर्स भी एक्सेप्ट कर लेता है, बट द राइट मेथड इज टू राइट इट इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। जो राइट प्रोसीजर्स हैं, जो मैक्सिमम स्कोर्स लेके आते हैं, आपने उन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। नाउ योर अनसर्टेनिटी इज फॉलिंग इनटू अप टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आप लॉग्ड वैल्यू को भी अप टू 2 डेसिमल प्लेस लिखेंगे। सो यू विल राइट इन द टेबल 0.46, ठीक है, 0.46 लिखेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब जरा ध्यान करें, वैल्यू इज फॉलिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड अनसर्टेनिटी इज आल्सो फॉलिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दिस इज हाउ यू डिसाइड कि आप टेबल को कैसे फिल इन करेंगे। सो क्लियर हिंट है कि पहले आप इसको सारा रफ वर्क करें, जब अनसर्टेनिटीज इन वन सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड हो जाएं, फिर आप इसको टेबल पर कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपको कटिंग वगैरह अवॉइड कर सकें, ठीक है। याद रखना कि इस पेपर को सॉल्व करते हुए आपने सारा पेपर पेन से सॉल्व करना है, सिर्फ ग्राफिकल वर्क के लिए पेंसिल यूज करनी है, ठीक है। आई हैव कॉन्स्टेंटली सीन के बच्चे पेपर 3 और पेपर 5 पूरा पेंसिल से कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। यू हैव टू डू दिस पेपर विद पेन अदर देन द ग्राफिकल वर्क, राइट। सो इसी तरह आप लॉग की वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे और यही वाला फॉर्मूला यूज करते जाएंगे फॉर अनसर्टेनिटीज, व्हिच इज लॉग ऑफ मैक्सिमम वैल्यू minus log of minimum value of luminosity divided by 2, and you get these uncertainties in the value of log value of luminosity. So now we have this table, we can utilize this table to draw the value of graphs और उसके ऊपर error bars भी draw करेंगे। I'll explain you what is error bars, ठीक है। Okay, moving on, he is asking you to calculate and record the values of LGT in days and LGL in the table, include absolute uncertainties. So we have included absolute uncertainties in the value of LG log of luminosity, ठीक है। Now plot a graph of LGL in 10 raised to power 30 watts and LGT in days. Include error bars in LGL, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले आप ऊपर टेबल से देखते हुए अपने सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस ग्राफ में प्लॉटेड नजर आ रहे हैं। याद रहे कि आपके पास जो इस केस में स्केल है वो प्री लेबल्ड है, आपने स्केल को दोबारा से लेबल नहीं करना, ठीक है। स्केल एग्जामिनर ने लेबल्ड दिया है। द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज LGT एंड द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस इज LGL, राइट। एक और बात को याद रखें, while calculating the gradient of logged value do not include this multiplying factor. जब आपने logged value का gradient find out करना है तो आप multiplying factor को consider नहीं करेंगे और बाकी सारे cases में multiplying factor को consider करेंगे। Now what is the best way to sketch a point? The best way to sketch a point is draw a small dot like this और इसको आप circle करेंगे to highlight it, ठीक है। दिस इज द राइट एंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्लॉट अ पॉइंट। तो आपने सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है, एंड यू ड्रू अ लाइन एंड दिस लाइन इज रेफर्ड एज बेस्ट फिट लाइन। अप टू बेस्ट ऑफ योर अप्रोक्सीमेशन दिस लाइन इज पासिंग थ्रू और वेरी क्लियर टू द पॉइंट्स एंड दिस लाइन इज लेबल्ड एज बेस्ट फिट लाइन। आपने इसको लेबल भी करना है बिकॉज एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्ट किया यू हैव टू लेबल दिस लाइन एज बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। अब जरा देखें, उसने आपको टेबल में कहा हुआ है इंक्लूड एरर बार्स फॉर द वैल्यूज ऑफ लॉग। नाउ लॉग ऑफ ल्यूमिनोसिटी किस एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया है? अलोंग वाई एक्सिस। तो आपकी एरर बार्स भी वर्टिकल एरर बार्स होंगी। जरा फर्स्ट रीडिंग को देखें, द वैल्यू ऑफ लॉग L is 0.46 एंड इट हैज अनसर्टेनिटी ऑफ 0.03, ठीक है। तो आपने 0.46 पे ये वाला पॉइंट प्लॉट किया, दिस वैल्यू इज 0.46, ठीक है, अगेंस्ट 1.34 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन इज रेफर्ड एज एरर बार, ठीक है। इस पॉइंट में कितना एरर था? दिस पॉइंट वाज 0.46 प्लस माइनस 0.03,
your error is falling on the second decimal place. ठीक है, and its value is 0.03. Now one small deviation along this axis is 0.01. तो 0.03 कितने ब्लॉक्स में आएगा? 3 स्मॉल ब्लॉक्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर आपने पॉइंट को प्लॉट किया, मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है, इससे 3 स्मॉल डिवीजन्स ऊपर 1 2 3 दिस पॉइंट और 3 स्मॉल डिवीजन्स नीचे 1 2 3, इस पॉइंट तक आपकी एरर बार स्ट्रेच होगी. ठीक है, सो दिस इज योर एरर बार. और इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर जो एरर था, जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी थी, दैट वाज 0.02. तो आपका जो पॉइंट प्लॉट हुआ है उससे 2 स्मॉल डिवीजन्स ऊपर और 2 स्मॉल डिवीजन्स नीचे तक आपकी एरर बार स्ट्रेच करेगी. दिस इज योर एरर बार. ठीक है, ओके. सिमिलरली आप एरर बार्स प्लॉट करेंगे और लास्ट पॉइंट में जो एरर था दैट वाज ऑफ 0.04. ठीक है, सो आपके पॉइंट से 4 स्मॉल ब्लॉक ऊपर और 4 स्मॉल ब्लॉक नीचे तक आपकी अनसर्टेनिटी की लाइन स्ट्रेच होगी. ठीक है, ओके. आफ्टर दिस यू ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज रेफर्ड एज वर्स एक्सेप्टेबल लाइन. इसके लिए आपने स्क्रीन को बड़ा केयरफुली देखना है. टू ड्रॉ वर्स एक्सेप्टेबल लाइन आप क्या करते हैं कि आप टॉप वाले पॉइंट को, ठीक है, बॉटम वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं. ठीक है, फर्स्ट एरर बार का टॉप वाला पॉइंट और लास्ट एरर बार का बॉटम वाला पॉइंट. तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है. यू हैव दिस ऑप्शन, और फर्स्ट एरर बार का मोस्ट लोएस्ट पॉइंट और लास्ट एरर बार का टॉप वाला पॉइंट. मैंने इन पॉइंट को ऑरेंज कलर के पॉइंट से मैंने हाईलाइट किया है और यही वाली लाइन को मैंने ड्रॉ किया है. दिस लाइन इज रेफर्ड एज वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन. This line is referred as worst acceptable line. Keep in mind that you have to label both of these lines, right? So आपने इन लाइंस को ड्रॉ करना है. इसके बाद आपने एक ट्राइंगल ऑफ ग्रेडियंट ड्रॉ करना है. आप दोनों लाइंस के लिए एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं या दोनों लाइंस के लिए इंडिविजुअल ग्रेडियंट ऑफ ट्राइंगल ऑफ ग्रेडियंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट फॉर बोथ ऑफ द लाइंस. ठीक है, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स व्हिच आर lying along the best fit line, which is 1.41 and 0.56, और worst acceptable line पे ये वाला point lie कर रहा है. Similarly, the point lying along the best fit line is 1.85 and 1.14, and the point lying along worst acceptable line is 1.85 and 1.16. ठीक है, 2 points हो गए best fit line के और 2 ही points हो गए worst acceptable line के, right? So you will take these points. आप बेस्ट फिट के 2 पॉइंट से बेस्ट फिट का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के पॉइंट से 2 वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे. सो हैव अ लुक. पार्ट 2 से दोबारा से स्टार्ट करते हैं. पार्ट 2 सेज दैट ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड वर्स्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ, लेबल बोथ द लाइंस. बिकॉज उसने इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको दोनों लाइंस को लेबल करना है, इस वजह से मैंने दोनों लाइंस को लेबल भी किया. नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन, इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ योर आंसर. सो बच्चों, आपने अपनी गिवन स्पेस को हाफ किया. हाफ ऑफ द स्पेस इज फॉर द ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन एंड द अदर हाफ ऑफ स्पेस इज फॉर द ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन. तो बेस्ट फिट के लाइन के ग्रेडियंट, बस बेस्ट फिट के 2 पॉइंट से आपने बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट किया. वर्स्ट एक्सेप्टेबल के 2 पॉइंट से आपने वर्स्ट एक्सेप्टेबल का ग्रेडियंट फाइंड आउट किया और बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट आया 1.32. आपका थोड़ा डिफरेंट भी आ सकता है. और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट आया 1.43, राइट? सो इन दोनों ग्रेडियंट्स के डिफरेंस से यू गेट द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट. सो अनसर्टेनिटी इन ग्रेडियंट इज ग्रेडियंट की लार्जर वैल्यू minus gradient की smaller value, and this value is coming out to be 0.11. As absolute uncertainty is always given in one significant figure, तो मैंने 0.11 को लिख दिया जनाब 0.1 which is one significant figure. तो पहले uncertainty लिखा करें 0.1 which is one significant figure,
अच्छा, अनसर्टेनिटी कितनी प्रिसिजन पे फॉल कर रही है, कितने डेसिमल प्लेस पे फॉल कर रही है, 1 डेसिमल प्लेस पे। तो आप अपने ग्रेडियंट को भी जब अनसर्टेनिटी के साथ लिखेंगे तो इसका भी 1 डेसिमल प्लेस लिखेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं लिख सकते बिकॉज बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अनसर्टेनिटी के हिसाब से वैल्यू को लिखना होता है। अनसर्टेनिटी एंड वैल्यू हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दे हैव सेम प्रिसिजन। Now, as we have calculated the value of gradient along with its uncertainty, हमने इस part को कर दिया. We have to move on the next part, and the next part says that determine the value of y-intercept of best fit include the absolute uncertainty. So, अगर आपने best fit का gradient और best fit के 2 पॉइंट से y-intercept find out किया, this will be the y-intercept of worst acceptable line और best fit line and वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के एनी 2 कोऑर्डिनेट से आपने वाई इंटरसेप्ट दोबारा फाइंड आउट किया, दिस इज वाई इंटरसेप्ट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन. तो आपने पेज को स्प्लिट किया, फर्स्ट स्पेस में आपने बेस्ट फिट लाइन का वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया और उसके सामने आपने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया और लार्जर मैग्नीट्यूड minus smaller magnitude say you got the value of uncertainty in the value of y-intercept. This value is coming out to be 0.18, but you know that absolute uncertainty is always given in how many significant figures? इसी क्लास में मैं 4-5 बार रिवाइज करवा चुका हूँ. Absolute uncertainty is always given in one significant figure. So it is 0.2. So your y-intercept collectively is minus 1.3 plus minus 0.2. ठीक है. Moving on to the next part, which is part D. He is asking you, using your answer in A, C3 and C4, determine the value of A and K. Right? Include the absolute uncertainties in your values. You need not to be concerned about the units. Okay. S is equal to 3.85 into 10 raised power 26 watts. ठीक है. अच्छा, ए पार्ट में क्या इंफॉर्मेशन थी? ए पार्ट में आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि ग्रेडियंट जो है वो ए के इक्वल है और आपके ग्राफ का ग्रेडियंट आया है 1.3 और उसकी अनसर्टेनिटी आई है 0.1. सो स्ट्रेट अवे योर ग्रेडियंट इज इक्वल टू ए, सो इट्स वैल्यू इज 1.3 प्लस माइनस 0.1. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल व्हिच इज के. के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जरा देखें. आपके ग्राफ के हिसाब से और वाई इंटरसेप्ट वाज इक्वल टू LGSK. ठीक है. अब इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल उसने दे दिया है और एक वेरिएबल आपने फाइंड आउट करना है. यहां पर आप लोग एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, और उसमें से k को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे. यहां पर जो स्टेप मिसिंग है मैं आपको दिखा सकता हूं. जो मिसिंग स्टेप है वो ये है, 10 रेज़ टू पावर वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू SK. और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है कि यू हैव मेड k द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है. तो s दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो योर वैल्यू विल बी k इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर y इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 30 डिवाइडेड बाय s. ठीक है. सो substituting the value of y intercept and s, you get the value of k which is coming out to be 130. Now this is very important. You have to find out the value of uncertainty in the value of k. So uncertainty find out करने के लिए मैंने k की worst value find out की. ठीक है. कैसे? मैंने मिनिमम या मैक्सिमम y इंटरसेप्ट सब्स्टिट्यूट करना था, तो यहां पर मैंने मैक्सिमम y इंटरसेप्ट सब्स्टिट्यूट किया, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आई 206. दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्स्ट वैल्यू ऑफ k. ठीक है. और बेस्ट फिट वैल्यू ऑफ k, बेस्ट वैल्यू ऑफ k और वर्स्ट वैल्यू ऑफ k के डिफरेंस से आपके पास k की वैल्यू में अनसर्टेनिटी आ जाएगी. जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन से वैल्यू आई है दैट इज 206 और बेस्ट फिट लाइन से जो वैल्यू आई है दैट इज 130. इन दोनों वैल्यूज के डिफरेंस से यू गेट द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ k व्हिच इज 80. ठीक है. 80 आ नहीं रही थी, मैंने इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में 80 लिख दिया. सो नाउ द वैल्यू ऑफ k इज अनसर्टेनिटी व्हिच इज 80. याद रहे कि अनसर्टेनिटी का लास्ट डिजिट जो है ये इनसिग्निफिकेंट है बिकॉज इसका यूनिट्स इनसिग्निफिकेंट है. तो अब यहां पर आपने वैल्यू भी जो लिखी है उसका भी लास्ट डिजिट इनसिग्निफिकेंट होगा. सो द वैल्यू ऑफ k इज 130 प्लस माइनस 80. राइट.
Now we are on the last part, and in the last part, he says that a variable star has a period of 5 days. Determine the luminosity of this star. So बच्चों आपके पास previously सारी values find out हुई हैं. The only unknown is luminosity. So इसमें आपने ये luminosity find out करनी है. ठीक है? Luminosity find out करने के लिए you will substitute the value of all the variables including your y-intercept using your time period which is given in days and its power which is a, and here you get the value of luminosity which is 6.8. So LGL is 6.8, L is equal to 10 raised to power 6.8, and this value is coming out to be 6.3 into 10 raised to power 6 watts. Right? These are very important things बच्चों. इस पेपर को जब तक आप खुद हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से ये पेपर कभी भी नहीं आएगा. ठीक है? So get your printouts. आप इस पेपर को पहले खुद से सॉल्व करें and then compare your papers with my paper or with mark scheme. Then you will be able to learn this paper. आप इस पेपर को बार बार करें और लॉ के पेपर पे खास जो है वो आप अटेंशन दें. Then you will be able to learn these papers, right? If you feel any kind of confusion or difficulty, you can always contact me, right? So this is it for today's video. We have done question number 2 very thoroughly. Yet if you have any problem, you can freely contact me. So thank you for this video. See you in the next video of paper 5. Stay tuned with Slate. Subscribe Slate. Thank you.